helicopter vouchers, like vouchers for everyone to spend, because people are now more averse to spending. That when we become author of our own story, we let other people learn from our life without having to live through it. I taught, the more I learned, the more I taught, the more I learned. इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, teaching is the best process of learning. Yes, life is not in the past, it is yet to come. So please hang on, because we are so young, too young, always will be young. Hello everyone, I am Shreya from Stocks Academy. Today we have a very special guest with us and he is Mr. Rajiv Babara. There are few people in this world whose life story fills with lots of motivation and dedication. Over the course of hearing that story, one such man is Mr. Rajiv Babara, a teacher by profession who teaches economics and accounts to high school students in Calcutta, teaching 500 students every year. He is not just a teacher, but an inspiration to many, crossing all the hurdles which life set up for him. He has successfully created a niche for himself, from being a stock market trader to forming knowledge capsule to help the students with current affairs. He has performed each task with utmost dedication and integrity. So, let's welcome Mr. Rajiv Kodar. So, hi sir, how are you doing? Perfect. Thank you for inviting me. I hope you are also doing well. Yes, sir. So, sir, before starting this interview, I just want to ask you one question, and is that like how you are getting this much energy and positiveness in your life? You see, सबसे best thing you might say, since I don't have any physical exertion, I'm full of energy. As you have told me about me in the introduction, I too am in a lockdown quarantine for 42 years. I've been on in this bed, so I lie here, so nothing to do. Only thing I do is watch TV, gather news. You see, there are so many TVs installed. Every wall has a TV, and I only watch news. Only and only watch. Not SRK type news. Sushant Riya Kangana, Shilpa Rajkundra, Shahrukh Khan Kapit. Not that type of news. Only worthwhile news. That is why I think listening to the news and lying down gives me the energy. But it is the enthusiasm of the students for whom I want to do something. And that is what makes me motivated. Because if I deal with youngsters like you and I am subdued and like a grandfather, then no one will take interest. So it is all like that. So we need to be updated. We need to have a revolution. And for that, you need a lot of energy. आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए. मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, आग लगनी चाहिए. So true, sir. Tell me. So, sir, I just want to ask you that, like, how you started your stock market journey, like your journey. Day before yesterday, I was reading Zerodha's owner. They have got 1 crore. How many demat accounts they have opened? They have reached a milestone. तो लोग ने इतने डीमैट अकाउंट खोल लिए. क्या हुआ ऐसा? जो उन्हें 5-10 साल में जितने अकाउंट नहीं खुले थे, लास्ट 2 साल में हुआ. लास्ट 2 साल क्या था? कोविड का टाइम था. तो काफी कुछ ऐसा था 1989-90 में जो मेरे साथ सिमिलर था. जो अभी हो रहा है वही मेरे साथ. क्योंकि मैं 1980 के बाद घर पे ही हूँ. बिकॉज ऑफ माई पैरालिसिस आई डोंट मूव आउट ऑफ द हाउस. माई फॉर्मल एजुकेशन इज ओनली क्लास 2. तो 1980s ऑफ इंडिया में कुछ करने को नहीं था. बहुत सारा दिन घर पे रहता था. उस टाइम टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, पबजी, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, भगवान वाला करे अच्छा था. वी वर नॉट देयर. सो बहुत टाइम था. Yes. उस टाइम में आप लोग जैसे 11-12 का क्लास 11-12 फर्स्ट ईयर वाला एज होता है ना, उस टाइम मैं उस एज का आ रहा था. 1990 ऑफ इंडिया. सो देखिए, मैं घर पे रहता था, आप लोग सब कोई घर पे रह रहे थे. आप लोग उस 11-12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एज पे थे, 20-22 साल के. मैं भी उस एज ग्रुप में था. अरे घर पे बैठे बैठे कुछ करके दिखाना है. तो जिस तरह आप लोग सब कोई डीमैट अकाउंट खोलिए, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो गए, सेम टू सेम चीज मेरे साथ हुआ. बस यही बात है, मेरे साथ 1989-90 में हुआ, आप लोग के साथ 2022 में. बोलते ना, हिस्ट्री माइट नॉट रिपीट, बट इट ऑफर ड्राइव्स. सो ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है. तो आप लोग जिस तरह शेयर मार्केट में गए, कुछ करने को नहीं कुछ करे, मैं भी
वो शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरी का नाम, तो मैंने भी उस टाइप चालू किया. So this is how I started stock market, because I had loads of time, I was doing nothing, great, daring and something as they say. तो तेरा मस्ती आता है स्टॉक मार्केट में, इसलिए मैं भी घुस गया. तो आपने पूरा अपना लॉकडाउन टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया है. लास्ट 32 इयर्स तो देखिए, मैं लास्ट 42 इयर्स से लॉकडाउन में हूँ. 1980 जनवरी में बीमार पड़ा था, उसके बाद से सिर्फ हेड और हैंड चलता है. जैसा इन्होंने कहा, आप मेरा टेड टॉक देख लोगे, आप मेरे गूगल कर लोगे तो मेरे को आइडिया लग जाएगा. तो मैं घर पे ही रहता था, सो मेरे लिए 42 इयर्स का लॉकडाउन है. आप लोग जैसे 2 साल ये सब कर रहे हो, वही बात है कि बस मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया, आप लोग के पास कम है, इसीलिए मैं आप लोग ने मेरे को बुलाया. मैं चाहता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करे. वो बोलते हैं ना, when we become author of our own story, we let other people learn from our life without having to live through it. हमारा जर्नी जो है, हम लोग बुक क्यों पढ़ते हैं? कोई भी एक आदमी का बुक क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज उसने अपना पूरा जीवन उसमें लिखा है, क्या उसने गलती की, क्या उसका राइट किया. तो वी डोंट हैव टू लिव थ्रू हिज एंटायर लाइफ, वी कैन गो थ्रू दैट बुक. टेल मी. Yes, sir. Fine. Sir, so first thing I want to ask you that, like nowadays, youngsters are coming to stock market and they are opening their trading account without having any knowledge. So, what's your एक तो opinion वीडियो on गेम that? है, टिकाटक अकाउंट खोलते हैं, वीडियो गेम खोल दिया, ला चालू करो, चलो बस रेडी. So, what's your opinion on that? Like, ऐसा सबके साथ ही होता है? देखिए क्या है ना, अगर स्टॉक मार्केट में रुपया कमाना करते, सब कोई जाके सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक काम नहीं करते, सब कोई बॉस का झाड़ नहीं सुनते, सब कोई बैठ के असाइनमेंट्स नहीं पूरा कर रहे होते, डेडलाइंस पूरा नहीं करते. सब यूथ लोग को लगता है स्टॉक मार्केट आओ, कमाना चालू कर दो. इतना इजी, सिर्फ अकाउंट खोलना इजी है, उसके बाद का कोई भी प्रोसेस इजी नहीं है. अगर इतना इजी होता ना, तो क्या करते, वो टाइप बैठ के जब लोग काम करने जाते हैं वो नहीं होता. हम लोग सीधा सुबह 9 बजे उठते, कंप्यूटर के सामने बैठते, 3:30 बजे खत्म होता, शाम को जाते पब में बियर पीता, फिर नेक्स्ट डे चालू. वाह क्या लाइफ, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी का चाप नहीं, कोई प्रेशर नहीं. All that glitter is not gold. How often you've heard that story? हर जो चीज चमकती है वो सोना नहीं होता है, हर जो चीज काला होता है कोयला नहीं होता है, और हर जो चीज इजी लगता है वो इजी नहीं होता है. Yes, sir. It's so true, actually. And sir, can you please tell us like few mistakes that you have done in your course of stock market? Like I won't ask you like success wala, इसीलिए rather than I'm asking you this mistake. देखिए क्या होता है ना, सक्सेस स्टोरी तो बहुत बताते हैं. Yes, मैं that आप लोग को is यही it. बताना चाहता हूँ कि मतलब एवरी पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न. Yeah. हर एक रुपया बचाया हुआ भी अपना रुपया अर्न ही है. Hmm. तो मैं आपको ज्यादा ये बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट की कैसे अपना रुपया बचाया जाए. Hmm. अर्न तो आपको 1000 से हो जाएगा. वो पहले नॉविस लग तो आता ही आता है, सब कोई करते हैं, पैसा आ गया, नेक्स्ट टाइम और बड़ा और बड़ा और बड़ा, फिर जब गिरता है तो सब लेके डूब जाता है. मैंने कहा ना, शेयर मार्केट अगर इतना ही इजी होता तो जॉब नहीं करता, इतना करता नहीं. आप अगर अपने हिस्ट्री में जाओगे ना, हर फैमिली में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई शेयर मार्केट में करोड़पति से रोड़पति हुआ हुआ है. देयर इज अ हिस्ट्री. अरे वो पापा के जो चाचा के दोस्त थे ना, उनके पास बहुत पैसा हुआ करता था, उनका स्टॉक मार्केट में सब चला गया. तो दादाजी के वो दोस्त हुआ करते थे, उसके ये थे, वो गए. सब जगह एक तो हिस्ट्री है. इसीलिए तो सब कोई बोलते हैं, करोगे बेटा फाट का, घर का रहोगे ना घाट का. मैं कैलकाटा में पढ़ाता हूँ 1980 से 1990 से पढ़ाता हूँ, 32 इयर्स हो गए. तो उसी टाइम मैंने स्टॉक मार्केट में चालू किया था. तो मैं फीस नहीं लेता हूँ, बिकॉज होल माई लाइफ इज फॉर माई स्टूडेंट्स एंड दिस एंड दैट. आई लिव फॉर देम, आई वांट टू गिव इट बैक टू देम एज मच एज पॉसिबल. तो सबको एक बार का सब पैसे नहीं लेते हैं, पक्का सर स्टॉक मार्केट बहुत करते हैं. मैं 24 से 25 घंटा स्टॉक मार्केट करता हूँ. मैं 24 से 25, सबको ये लगता है हाँ सर बहुत कमाते हैं इसीलिए पैसा नहीं लेते. ऐसा कोई बात नहीं है. देखिए मेरे पास कुछ करने को नहीं था आप लोग की तरह, तो मैं उसमें घुस गया. आप लोग के पास लॉकडाउन के बाद बहुत चीज करने को है, तो प्लीज इसको जब तक पूरा नॉलेज नहीं हो इसके अंदर मत घुसिएगा. सब कोई बोलते हैं सर आप करते हो और हमें मना करते हो, तो गलत बात है. बात तो सही है भाई, मतलब खुद के ऊपर फॉलो नहीं कर रहे हो प्रिंसिपल रूल्स. और अपने पास वो राकेश जुनेवाला जिनका अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया, उनका एक तो बहुत फेमस डायलॉग था, हमेशा बात बोलते थे, डैडी विस्की पीते थे, हमें मना करते थे. बिना रिसर्च किए, बिना टोटल थरो नॉलेज के इस मार्केट में मत घुसिएगा. मैं आप लोग की तरह बिना रिसर्च किए, बिना काम किए घुसा था. उस टाइम तो गूगल नहीं था, कुछ बुक्स नहीं थे, कुछ नहीं था, ऐसे ही घुस गया था अंतावड़ी ले गया. आजकल तो आप लोग इतना सारा लिटरेचर ऑनलाइन अवेलेबल, आप लोग का जो खुद का ये जो आप लोग ये कर रखे हो, जो प्लेटफॉर्म खोल रखे हो जिससे आप लोग सिखा रहे हो, दिस सो नाइस थिंग.
at a click of a button you people are get such expert. तो उन सबको एक्सपर्ट को यूटिलाइज करो, उसके बाद करो, नहीं तो इतना जल्दी जैसे क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट में घुसना इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, भी बहुत अच्छा है। एक बात समझो, डॉक्टर भी बनता है ना डिग्री लेने के बाद भी वो 3-4 साल प्रैक्टिस करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में तो क्या है, अभी अकाउंट खोला, आधार कार्ड लिख करके किया, अरे नेक्स्ट मोमेंट आज तो रिलायंस पक्का बढ़ेगा, मेरे को पक्का मानता है बढ़ेगा, मेरे को ये पता था जोमैटो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पेटीएम का इशू आया यार, सारा दिन पेटीएम यूज करते हैं, वो वैल्यूएशन के चुल्ले में लगाओ। मेरा बात यही है, गलतियां मैं बताऊं कि जब भी करो पूरा नॉलेज के बिना मत करो, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। स्टॉक मार्केट में अच्छे से अच्छे आदमी हाथ जल जाता है, तो कमती ज्ञान, थोड़ा ज्ञान, गट फीलिंग का ज्ञान के ऊपर तो कभी मत जाओ। लक क्या है, एक बार सपोर्ट करेगा, 2 बार सपोर्ट करेगा, 3 बार सपोर्ट करेगा, हर बार थोड़ा सपोर्ट करेगा। देखिए बोलते हैं मार्केट में 5 ही जन कमाते, 5 people earn, बहुत फेमस कोटेशन है पहले का, इसीलिए सबको बोलते थे करोगे बेटा पाट का, घर का वगैरह घाट का, स्टॉक पर 5 जन कमाते हैं। कोई है भी तकदीर वाला जो हाथ लगाता है सोना वाला, थ होता है जो थावस रखता है, जो ले लेता है, पेशेंटली वेट करता है, कोई चीज नहीं है। द होता दलाल, डेली लिया बेची करो, अपने पैसा आ ही रही है, दलाल के तो आएगा। ध होता धनी, राकेश जुनी है, वेरी रिच, अरे लगा दो रुपया और ले लो, क्या फर्क होता है। और न होता है जो नट जाता है, नट नहीं माना हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट हुआ तो मेरा, लॉस हुआ तो हमको नहीं पता, मेरे पास पता नहीं है, हम तो भाग गया। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, क्रिकेट में वो बैट जिसका होता है वो आउट हो जाता है, फिर बोलता है अरे अब नहीं खेलेगा, अब तो घर जाना है, ले जाओ तुम लोग फील्डिंग का। सो मेरा बोलना यही है कि बहुत सावधान होकर खेलो। यहाँ पे इतना यूथ लोग पूरा वर्ल्ड के अंदर जाते हैं स्टॉक मार्केट में, अमेरिका में वॉरेन बफे ये सब है, so there are a lot of success story but there are a lot of failures also. और 99% आदमी लोग लूज करते हैं इस मार्केट में। there must be some reason. किस रीजन है? आपने जो गलती बताई ना, सबसे बड़ा गलती क्या है, एक तो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड का चीज है। क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। आईफोन का दाम 20% कम हो जाए, एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड टू गो एंड बाई। जब भी कोई दाम सस्ता होता है, सेल लगता है दुकानों में, सब घुस जाते हैं, लड़कियां तो एकदम पागल हो जाती है कि भाई सेल लगा, सब घुस जाओ। तो प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड। स्टॉक मार्केट में उल्टा, जब प्राइस गिरता है ना तो डर आ जाता है, फियर, अरे और गिरेगा, अरे हमको नहीं खरीदना शेयर, बेचो। जब प्राइस बढ़ जाता है ना, सबको ही कमा रहे हैं, अरे हमको भी लेना है, हम भी आते हैं। तो ये तो ऑपोजिट है ना। अब 2020 से बाजार इतना गिरा कोविड के टाइम पे, तब हम लोग कोई नहीं खरीदे। जब बढ़ता रहा, जब 10,000 का 18,000 इंडेक्स आ गया, तब सबको ही घुस जाते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड के ठीक ऑपोजिट चलता है। इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें आपकी गलती नहीं, मेरी गलती। अगर 99% रॉन्ग कर रहे हैं तो मतलब ये ह्यूमन प्रॉब्लम है ना, ये आपका और मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले चीज को समझो, क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करके आगे बढ़ो। जैसे आपने कहा, मैं मिस्टेक बताता हूँ, आप और क्वेश्चन पूछिए, मैं बताऊंगा, बहुत सारी मिस्टेक्स बताऊंगा इसमें। Okay, sir. So, sir, one thing I'm noticing is that like many people taking the technical analysis courses. So, my question is that like what does one need to know apart from this technical analysis? देखिए क्या होता है ना, देयर आर वेरी डिफरेंट वेज ऑफ ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। एक फंडामेंटल अप्रोच है, Yes. जो रिसर्च करके, जैसे वॉरेन बफे कंपनियों के ऊपर रिसर्च करते थे, ये चलेगा, ये गिरेगा, ये कंपनी अच्छा है, तो वो हो गया एक तो बैलेंस शीट अप्रोच, रिसर्च रिपोर्ट करके कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में। Yes, sir. एक होता है टेक्निकल का कोई मतलब नहीं है, टेक्निकल तो सिर्फ ग्राफ देखना है, ग्राफ देख रहा है, ग्राफ के हिसाब से वो काम कर रहा है। एक होता है मोमेंटम, जो ट्रेडर होते हैं उन लोग भी टेक्निकल देखते हैं, उन लोग भाव देख के कि कैसे स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसके हिसाब से देखते हैं। सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस। बट अगर इन्वेस्टमेंट करना होता है ना कोई चीज का, ये अंडरस्टैंड, देयर आर 2 थिंग्स, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। Okay. इन्वेस्टिंग नॉर्मली आदमी लोग जब करते हैं तो वो स्टॉक का फंडामेंटल देख के करते हैं। आप जैसे वन अपॉन वॉल स्ट्रीट ने क्या कहा, पीटर लिंच की बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द बाइबल। किसी भी बिगिनर्स को अगर जाना हो, सबसे पहले वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पढ़ना चाहिए बाय पीटर। वो क्या बोलते हैं कि जो चीज आप सुबह उठने के बाद रात में सोते तक जो यूज करते हो, उसको ध्यान में दो। जैसे क्या देखना है आपको, आपने सुबह उठा, आप कोलगेट यूज करते हो, सोप में लक्स यूज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा,
आप ये ध्यान रखोगे कि आपको लक्स और सोप आपके सूट करता है, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन को भी आप वही दोगे, नेक्स्ट जनरेशन को भी वही दोगे, तो आपको लक्स और उसका ध्यान देना पड़ेगा। टूथपेस्ट कोलगेट के ऊपर आप ऑयल कौन सा यूज करते हो, आप वो बटर कौन सा यूज करते हो। जैसे आपको लगा अमूल, अमूल से तो कोई है नहीं, अमूल लिस्टेड नहीं है, चलिए ठीक है अमूल लिस्टेड नहीं है, हम लोग को जैम जेली अचार कोई भी लगेगा, बट बटर चाहिए तो अमूल का ही लेते हैं हम लोग सिर्फ। दैट्स वेरी ट्रू। अब आप सोचिए, आप जैसे मैंने कहा सुबह से रात तक आप क्या यूज करते हो, जोमेटो स्विगी यूज करते हो, तो जोमेटो स्विगी का शेयर देखो, आप देख रहे हो चारों तरफ तार ही तार है, एवरीथिंग इज वायर, एवरी रूम एवरी स्ट्रीट इज फुल ऑफ वायर्स, तो वायर की कंपनी देखो। तो आपको क्या ना सुबह, ये फंडामेंटल हो गया, पहले आप ऑब्जर्व करो, सबसे फर्स्ट चीज आप ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ये आप ही के अंदर है। सुबह उठने के बाद रात में सोते तक जो जो सामान आप यूज कर रहे हो, गाड़ी कौन सा, ओला उबर कौन सा यूज कर रहे हो, कौन सा बाइक यूज करते हैं, फिर अपन लोग कौन सा फोन यूज करते हैं, जियो यूज करते हैं कि एयरटेल यूज करते हैं, पेन कोई यूज कर रहे हैं, पेपर कौन सा यूज करते हैं, जो आपको समझ में आता है। जब आप पार्टी कर रहे हो तो क्या आप मेनलैंड चाइना में जाके खरीद रहे हो कि उसका भी स्टॉक मार्केट शेयर लिस्टेड है, आप जो वो यूज कर रहे हो, एसी कौन सा यूज कर रहे हो, वो भी बहुत डिपेंड करता है आपका इसके ऊपर, तो आप उसके हिसाब से शेयर से। अब और तो और छोड़ो, ये सब तो ये वन अपन वॉल स्ट्रीट ने कहा पीटर लिंच कि पहले के जमाने में। अब आप देखो आजकल आप टीवी ज्यादा देखते हो कि नहीं देखते हो, रेयरली, टीवी इज ऑब्सोलीट नाउ। अगर टीवी नहीं देखते हो तो जी टीवी कैसे चलेगा, अगर आप टीवी नहीं देखते हो तो जो स्टार प्लस का अगर शेयर लिस्टेड है तो वो कैसे चलेगा, तो जी के शेयर जाएंगे। अगर आप टीवी नहीं देखते हो तो ऑल्टरनेटिव क्या देखते हो, आप ओटीटी देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, अमेजन देखते हो, तो उनके कौन से शेयर्स है जो लिस्टेड हो सकते हैं, तो आपको वो ध्यान देना। अच्छा और तो और छोड़ो, आप क्या यूज करते हो, आजकल सब कुछ स्टॉक ब्रोकिंग में घुस रहे हैं, स्टॉक ब्रोकिंग में यूज करते हो, स्टॉक ब्रोकर का शेयर खरीदो। ऑब्जर्व, आप ही तो यूज कर रहे हो वो, कौन सा स्टॉक का ब्रोकर, जीरोधा लिस्टेड नहीं है, और कौन सा है एंजल ब्रोकिंग है, और कौन सा आईसीआई सिक्योरिटी है। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। वन अपन पॉजिटिव यही बोलता है कि जो आप सुबह से यूज करते हो वो यूज करो। अच्छा चलिए, आपके पास 10 ठो वो है, आपके पास 10 ठो ब्रोकिंग की कंपनीज है, आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको तो डीमैट खोलना पड़ता है, डीमैट खुलता है एनएसडीएल सीडीएसएल में, तो सोचो आप उसके ऊपर ध्यान दो कि वो दोनों कंपनी का शेयर का लिस्टेड है तो खरीदना है। फिर आप गाना बहुत सुन रहे हो, अगर गाना यूज कर रहे हो, इंस्टा यूज कर रहे हो, तो उसमें रील्स आते हैं, अगर आप रील्स यूज कर रहे हो तो रील्स में गाना के ऊपर रेवेन्यू होता है। अब सारे गामा जो है, सारे गामा का सब पुराने पुराने गाना हिट हो रहे हैं, उन लोग उसको रिसाइकिल करके ला रहे हैं। अब वो वाला गाना जितना बोलते हैं, हर जो रील में वो गाना चलाते हो आप, उसके अंदर हर एक के अंदर उसको कुछ पैसा मिलता है। सो थिंक अबाउट इट, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑब्जर्वेशन पहले करो कि क्या स्टॉक आप, क्या प्रोडक्ट आप यूज करते हो, फिर देखो वो लिस्टेड है कि नहीं है। जैसे यंगस्टर्स है, 15-20 साल पहले यूथ लोग जो थे, लड़का लोग जो थे, आपने देखा होगा वो लड़का लोग अल्कोहल पीते थे, बियर उतना कॉमन नहीं था, अल्कोहल पर भी पार्टी वार्टी में पीते थे। आजकल तो बियर इज नो लॉन्गर अ टैबू, वो तो नॉर्मल हो गया। नॉट ओनली बॉयज बट अब वुमेन्स लोग भी पीते हैं, नो हार्म, वो तो भाई कल्चर है, कर रहे हैं। तो देखिए उनका डिमांड कितना ज्यादा बढ़ेगा। तो आप जब पार्टी करने जा रहे हो तो देखो कौन सा ब्रांड पी रहे हो आप, ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट करोगे ये अच्छा। सो ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स फॉर अ लेमैन और अ पर्सन लाइक एनीवन। सपोज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर अ नोविस, यू डोंट नो अबाउट स्टॉक मार्केट। अब कल से आप क्या करोगे, आप भी ध्यान करोगे आप क्या यूज कर रहे हो। जो उसने बताया था, पीटर लिंच ने बताया था, उसने बोला था सोप, शैम्पू, क्या खाना यूज कर रहे हो, क्या कैलॉग यूज कर रहे हो, कौन से अकाउंट में बैंक खोला, जैसे बैंक अकाउंट है। अब आप सोचो, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ कि आप इलाहाबाद बैंक में अकाउंट खोलोगे कि आप आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खोलोगे, किस में खोलोगे आप अपना अकाउंट, आप बताओ। ICI. जस्ट इमेजिन, पब्लिक सेक्टर में कोई नहीं खोलेगा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड पीएनबी, उसमें कोई नहीं खोलेगा। आपको ऑप्शन आएगा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटी, आपको इंडसइंड बैंक आएगा, आप उसी में खोलोगे। तो जितने यंगस्टर्स हैं उनका अकाउंट वहीं जाएगा। इंडिया में 1.5 करोड़ बच्चा पैदा होता है हर साल, 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ आदमी लोग, आप जैसे 18 साल के ऊपर 19 में जा रहे हैं इस साल, जो 20 साल पहले जब बॉर्न हुए थे, अब वो 20 साल के हो गए।
तो लोग अपना अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट कहाँ खोलेगा? HDFC, ICICI, एंजल ब्रोकिंग। तो वो सबको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? क्या आप जुबिले वो पिज्जा खाते, डोमिनोज का खाते हैं हम लोग, घर का तो खाना ही नहीं पाता आजकल हम लोग को, सब टाइम ऑर्डर चाहिए, तो क्या चलेगा? तो जोमेटो के शेयर लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? यही चीज आपको ऑब्जर्व, और इसमें किसी का दरकार नहीं है। आप अपने आप आग लगा सकते हो, आप अपने आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला काम है कौन सा सेक्टर अभी चल रहा है। अब आप सोचो, टीवी को नहीं खरीदोगे, आप टीवी इंडस्ट्री नहीं खरीदोगे। 10 साल पहले हम लोग जस्ट डायल बहुत यूज करते थे, आजकल जस्ट डायल यूज करते हैं हम लोग? दरकार नहीं है, फोन पे ही है। देखिए आपको खुद को आंसर पता है जो मैं पूछ रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग द राइट क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली आंसर आपके आंसर से निकल रहा है। दिस इज द फन। स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स रैशनैलिटी, लॉजिकल एंड loads and loads of patience. Yes, sir. So, sir, tell me, like, for like few reasons, like why people are scared of stock market, and do you think like it's the time for people should change their mindset and start investing in a good company? देखिए आपने जो कहा ना, पहला क्वेश्चन आपने क्या पूछा Why कि people are scared? मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जीरो था, जीरो था जिसके पास सबसे ज्यादा अकाउंट है इंडिया के, उनके ओनर ने, उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने बोला कि ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 years, बोला इनिशियली नहीं, आप अभी लगाओगे स्टॉक में, वो खुद ओनर है, खुद ही, लेकिन वो बेचारा इतना अच्छा बात बोला कि आप जैसे आप है, आप शुरू में लगाओगे पे रुपया आने लगे, आपको लगेगा बहुत इजी है। बोला मैंने अपने जो उसके पास, और नितिन कामत के पास तो सारा स्टॉक पोर्टफोलियो है, उसको तो दिख रहा है कौन कितना कमा रहा है, एट क्लिक ऑफ अ बटन वो देख सकता है कि पूरे आदमियों पे कौन कितना कमाया, करोड़ों आदमी में से कितने जन ने 20% रिटर्न लाया, कितने 50% रिटर्न लाया। उसने बोला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 90% या 99%, उसने बोला कि सिर्फ 1-2-4% आदमी लोग हैं जिन लोग स्टॉक मार्केट में जो नॉर्मल बिजनेस है ना, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा कमा पाते हैं। आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिक्स डिपॉजिट में आप जितना कमाते हो, अपन को लगता है 4-5-6% रिटर्न है, फिक्स डिपॉजिट में रुपया लगा के क्या नहीं जानी है। स्टॉक में बोलते हैं वेरी फ्यू, 1-2-4% ऐसे ही हैं जो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा कमा पाते हैं ओवर पीरियड। सबको आते क्यों है? मैंने आपको बोला लोहा का काम कर लो, तो आपको लोहा का काम करने में आपको टाइम लगेगा। मैंने आपको कहा मिठाई का दुकान खोल लो, वो चालू करने में टाइम लगेगा। हर काम में टाइम लगता है। स्टॉक मार्केट पे एंट्री एकदम टकाटक वीडियो गेम है, 1 सेकंड में अकाउंट खुल जाता है। अगर आपका अकाउंट खुल गया तो आपको लगा सकते। सो ही सेड द डिफरेंस बिटवीन अदर बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट इज दैट स्टॉक मार्केट में एंट्री इजी है और सब में एंट्री डिफिकल्ट है। स्टॉक मार्केट में रिटर्न 99% आदमी लोग वही कमाते हैं जो दूसरे बिजनेस में कमाते हैं। तो जो आपने कहा ना, आपने क्या पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाई आर पीपल स्केयर्ड? क्योंकि हम लोग को लगता है बहुत इजी है, लेकिन है नहीं इतना इजी। So, sir, one last question, sir. What will be the ideal sequence of anyone's stock market journey? Like, if somebody wants to learn stock market, so what will be the sequence for that? You see, number one, you need to have a very, very good knowledge theoretical. As I said, doctor, if you get a doctor degree, then you have to practice. If you get a license of to drive, you need to practice. So first is the theory part you need to complete, whether it is a graduation, CA, CFA, some sort of a classes held by platforms like you. Those are very important to get a basic knowledge about it. Learn the tricks of the trade slowly. Don't jump with a lot of capital. Try to start with an IPO. That is the safest way to start off. Apply for IPO, get a hang of how things are done, and then slowly improve on it. Don't jump because 100% it is a big pitfall. It is a trap. It is like an oasis in the ocean, in the sand, desert. You will find that it is all green, but when you go and jump, it's all sand over there. So be very careful. Take one by one step at a time. If you want to make a career out of stock markets, then also you need to be very careful. But if you want to do it a pastime,
then it's much better to invest in mutual fund. Because since suppose a person like you are so busy, who's working whole day, whole night, and that person doesn't have the time to keep track of latest happenings in and around the world, what policy changes the government has done. So today Reliance had an AGM. What is the announcement done by Mukesh Ambani on that? Tomorrow government might change some of the rules regarding China export-import policy. Some companies might be fixed. So there are too much of things happening. Any and every little thing affect the stocks. So it's better to be very careful, read properly. If you don't have time, give the money to experts, give the money to mutual funds, and as much as possible, try to be updated, only then invest. Matlab, it's a very old quote. When you buy a car or a phone or any type of gadget or any type of kapda, you do a lot of testing, you do a lot of review. ये खरीदना है. Stock market में तो क्या होता है? अरे क्या खबर है? अरे इसमें खबर है, लगा दो. Without even checking the financial, without even knowing about the track record of the company, because too many companies have gone bankrupt. Anil Ambani, Jet Airways, Kingfisher, and then there are numerous companies. We can name it. We could never believe that those brands could go bankrupt. So anything and everything can happen. Do your homework well. Go in a sequence way. First study. Start up with an IPO mutual fund, and if you have time, only then go directly. But do the sessions. You see, academics is okay, but a platform like you are providing live sessions about how to trade. These are very important to know the tricks of trade and to learn from the experts. Thank you so much for your precious time, sir. It's really appreciated. देखिए, अपन को आग लगाना है, सब कोई को कुछ सिखाना है. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं. सारी कोशिशें है ये सूरत बदलनी चाहिए. मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही. हो कहीं भी आग, लेकिन आग जल्दी चाहिए. Journey of 1,000 miles starts with the first step. Rome was never built in a day. Don't think कि आज जंप किए, आज ही सब स्टॉक मार्केट सीख गए, आज ही सब कुछ आ जाएगा. नहीं. But as they say, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही. गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. Start slowly and steadily. Talk to experts. Apply for subscriptions from platforms like you, and then rock the world. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, so as I said, take care, and if further allowed, if you people like it, we will have weekly sessions. I'll tell you more and more mistakes, more and more things you will come to know. You need to keep updated about the latest affairs also. This is also very important. I just missed out because China Taiwan controversy, Russia Ukraine, Sri Lanka. Because as I said, anyone sneezes in any part of the world, stock market is affected. If you have a clothing club, if you are RRS steel tea market, it doesn't affect that much. But stock market, anything and everything. Whoa. Trump used to tweet in the night and used to wake up with a nightmare. Oh God, what happened? So there can anything and everything can happen. So keep track of the current affairs, whatever is going on, because that makes you take decisions. It makes you a learned decision. So I take a lot of sessions, live sessions on general affairs, current affairs, what's going on in the world. Try to make its cause and effect, how it affects the stock market. Do join this, and these platforms will allow. I will always take the decision so that you can keep track. Thank you so much, sir. Like आपके ये सारी बातों से आजकल के जो भी youngsters हैं, like really wanna know stock market and everything. Finally, they will understand कहाँ से start करना है at least. So thank you. Step by step चलना. और क्या है ना, चक दे फटे 90 किल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली करके ही दिखाएंगे हम लोग. Sure, sir. Okay. Bye, sir.